یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ نہوم جماعت کا پہلا سبق حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو، اس سبق کا آج ہم جائزہ لینے والے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ جو سبق ہے کسی ایک فرد نے تحریر نہیں کیا ہے، بلکہ مجلس مشاورت و عدالت نے کیا ہے، اور یہ جو کتاب کی شروعات میں ان اراکین کے نام بھی دیے رہتے ہیں، یہاں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم لوگ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے جو جملے کہتے ہیں، یہ جو فقرہ ہوتا ہے اس کا مطلب اللہ ان سے راضی۔ تو وہ اگر صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، ایک سے زائد صحابی یا صحابہ ہیں، تو ان کے لیے ہمیں کس طرح سے ہم ان کو پکاریں، اس کے لیے اسکرین پر آپ ایک مفید معلومات ہے کہ آپ کو تا حیات ویسے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ۔ عزیز طلباء، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا جو سبق ہے اس کا موضوع سوانح ہے۔ یہ سوانح یعنی کہ کسی کی حیات پر لکھی گئی جو معلومات ہوتی ہے اسے ہم لوگ سوانح حیات کہتے ہیں، اور یہ مذہبی شخصیت اس کا موضوع ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، جلیل القدر صحابی، اور ایثار و خلوص اور دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی شخصیت۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں اور یہ کون سے 10 صحابہ ہیں، یہاں آپ اسکرین پر ان صحابہ کے مبارک اسم گرامی دیکھ سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین ہیں پہلے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے نام دیے ہوئے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے، میں امید کرتا ہوں، یہ جو فرہنگ اردو ہے اس کی مدد سے، اور یہ جو درسی کتاب یہاں نویں جماعت کی ہے اس کی مدد سے آپ نے سبق کا مطالعہ کر لیا ہوگا۔ آج ہم سبق کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد آپ کا جو 80 مارکس کا سرگرمی نامہ رہے گا، جو سوالیہ پرچہ رہے گا، اس میں سوال نمبر 1 جو رہے گا اس میں الف، ب اور ج اس طرح سے 3 سرگرمیاں رہنے والی ہیں۔ تو اس سبق پڑھے ہوئے مطالعہ کیے گئے سبق کو ہم لوگ 80 مارکس کے سوالیہ پرچے کے موازنے میں، آئیے ہم لوگ اس کو ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ یہاں پر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ حصہ نثر سے اسباق پر مشتمل یہاں پر 2 درسی اقتباسات دیے جائیں گے، اور حصہ نثر کل 18 نمبرات پر مشتمل ہے، 18 مارکس پر۔ اس میں سوال نمبر 1 الف جو رہے گا وہ بھی درسی اقتباس، کتاب سے ایک اقتباس دیا جائے گا، اور اس سے آپ لوگوں کو 3 سرگرمیاں حل کرنی ہیں، معروضی، موضوعی اور تیسری ذاتی رائے پر رہے گی۔ معروضی 2 نمبرات کی سرگرمی ہے، موضوعی 2 نمبرات پر مشتمل سرگرمی ہے، اور ذاتی رائے پر مشتمل جو سرگرمی ہے وہ 3 نمبرات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 1 کا جو بے رہے گا یہ بھی اسی طرح 3 سرگرمیوں پر مشتمل، اس میں اقتباس دیا جائے گا اور آپ کو سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ اور سوال نمبر 1 کا جو جیم ہے وہ 4 نمبرات۔ اس طرح یہاں پر آپ نے اسکرین پر دیکھا 7 7 اور 4 نمبرات، اس طرح کل 18 نمبرات پر حصہ نثر پر مشتمل سوالات دیے جانے والے ہیں۔ تو بچوں، سبق کا مطالعہ، پہلے سبق حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو کا مطالعہ ہم نے کیا۔ اب ہم اسی اسباق کے جو اقتباسات ہیں، مختلف اقتباسات، ان سے کون سے قسم کے معروضی خاکے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم لوگ ویب یا شبکی خاکہ، یہاں اسکرین پر آ رہا ہے، آپ لوگ دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی موجود بچپن سے جو خوبیاں تھیں، یہاں پر آپ لوگوں کو 4 الفاظ میں ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ جیسے یہاں پر جوابات بھی دیے ہوئے ہیں کہ وہ وجیح تھے، دراز قد تھے، مضبوط جسم کے مالک تھے، اور
चौथी जो सरगर्मी यहाँ पर दी गई है कि वो फुर्तीले थे। इसी तरह अगला खाका जो मारूज़ी खाका है जो यहाँ दिया गया है, ये एक शजरी खाका है। शजरी खाके में हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से मालूमात आपको दर्ज करनी है, जैसे कि उनका पहला नाम और उसके बाद इस्लाम कबूल करने के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम नाम रखा था, वो नाम यहाँ पर, और उसके बाद दिया हुआ है कि उनका ख़ानदान कौन सा था और सने पैदाइश। इस तरह आप लोगों को ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। बच्चों, ये दो किस्म के मारूज़ी खाके हमने देखे, शबकी खाका और शजरी खाका। अब ये तीसरा खाका आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर, जो रवां खाका। रवां खाका जो रहता है, इसमें मुसलसल लगातार तरतीब से मालूमात को आप लोगों को दर्ज करना रहता है। यहाँ भी आप लोगों को 4 अल्फाज लिखकर जुमले की तरतीब जो है वो कायम रहे, इस तरह से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इस पर मुतज़ाद उनकी, और आगे जवाब भी वहाँ पर दिया हुआ है कि सादा और बेरिया ज़िंदगी थी जिसमें वहाँ पर आगे जो जवाब है वो भी वहाँ पर दिया हुआ है कि, और अगला उसके बाद देखेंगे आप लोग कि इस तरह आप लोगों को ये खाका मुकम्मल करना है। आखिर में जो चौथा दिया हुआ है खाना, उसमें क्या आएगा? हालात। हाँ, हालात में कोई कमी नहीं आई। इस तरह हमने यहाँ 3 खाके देखे जो मारूज़ी हैं। सवाल नंबर 1 के जो इक़्तिबास दिया रहेगा, उसकी पहली सरगर्मी 2 मार्क्स के लिए, 2 नंबरात के लिए यहाँ पर रहेगी। अब बच्चों, इसके बाद दूसरी सरगर्मी जो है ये मौज़ूई है, यानी इक़्तिबास से सवाल दिया रहेगा। आपने इक़्तिबास को समझा है और समझने के बाद ये सवाल आपको इक़्तिबास से देखकर जवाब तहरीर करना है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए आप लोग, इसी सबक से 3 सवालात दिए गए हैं। ये सवालात आपको नज़र आ रहे हैं कि पहला जो है वो एक बयान दिया हुआ है कि भाई मुझे सिर्फ़ बाज़ार का रास्ता बता दो, इक़्तिबास की रोशनी में इस जुमले की वजाहत कीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तिजारत की शुरुआत से मलिकुत तिज्जार बनने तक का सफ़र बयान कीजिए। और एक सवाल यहाँ पर दिया गया है कि तोहमतुल जिंदल की जंग के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या नसीहत की। तो ये जो 3 सवालात हैं, इसके जवाब आपको अपने जुमलों में लिखना है, लेकिन इक़्तिबास से लिखना है, मौजू से लिखना है। इसलिए ये मौजू सरगर्मी है, इसके लिए भी आपको 2 नंबरात दिए जाएंगे। अब हम लोग अगली जो तीसरी सरगर्मी है, ये इजहार ख़याल और ज़ाती राय पर मुनहसर है। यानी आप लोगों को जो सवाल वहाँ पर दिया जाएगा, उस पर आप लोग बेबाकी से अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। इसमें आप मज़बूत मनफी राय का इज़हार कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं और मुत्तफ़िक नहीं भी हो सकते। तो जैसे यहाँ पर सवालात दिए गए हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तिजारत दुनिया के तमाम उयूब से पाक थी। इस बयान पर अपनी राय का इज़हार कीजिए। दूसरा सवाल जो दिया गया है कि माल व मता, दौलत व सरवत के ज़ोम में आदमी खुदा फरामोश ही नहीं, अपनों से बेजार भी हो जाता है। इस जुमले पर इज़हार ख़याल कीजिए। और इसी तरह तीसरा सवाल दिया गया है कि सारे अहले मदीना इब्न औफ के माल में शरीक हैं। इस बयान की वजाहत करते हुए अपनी राय का इज़हार कीजिए। इस तरह हिस्सा नस्र में दिए गए इक़्तिबास पर 3 सरगर्मियाँ, यानी एक इक़्तिबास पर 7 नंबरात के सवालात पूछे जाने वाले हैं। 2-2 नंबरात की पहली दूसरी सरगर्मी और तीसरी 3 नंबर की सरगर्मी रहेगी। अब बच्चों, हम लोग इसी सबक से ये कुछ मुहावरे हैं, तो मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करना है। एक बात आप लोग याद रहे आप लोगों को कि मुहावरों को के मानी आपको जुमलों में इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर दिया है कि सेंत सेंत कर रखना, यानी संभाल कर रखना। अब आगे दिया हुआ है कि ज़ैद ने अपनी जेब खर्च से ख़रीदी हुई किताब ज़ैद सेंत सेंत कर रखा है। अगला जुमला दिया गया है, अगला जो मुहावरा है वो है पस अंदाज़ करना, यानी बचत करना। अब इसमें मुहावरे यहाँ जुमले में जो इस्तेमाल करके यहाँ बताया गया है कि पस अंदाज़ की गई रकम
तंगी के या गुर्बत के हालात में काम आई। बच्चों, एक और जुमला मुहावरा यहाँ पर दिया गया, दस्त बरदार होना, और उसको भी जुमले में इस्तेमाल कर बताया गया। इस तरह आप सबक से मज़ीद मुहावरे तलाश कीजिए, उसे अपने तवाज़ुन में दर्ज कीजिए। इसी तरह सबक से वाहिद जमा के अल्फाज भी दिए गए हैं। ये जो बच्चों वाहिद जमा मुतरादिफ अल्फाज हम मानी अल्फाज हैं या ज़ीद अल्फाज हैं, इस तरह के अल्फाज आप लोग सबक से तलाश करके अपनी ब्याज़ों में ज़रूर दर्ज करें। इससे आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होगा। और सवाल नंबर जो बोर्ड आपका जो 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, सवाल नंबर 4 के बे में, उसमें आपको ये ज़ख़ीरा अल्फाज की जो सरगर्मी है वहाँ पर पूछा भी जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर जो वाहिद जमा के अल्फाज दिए हुए हैं, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे उम्मेहात, गज़वा गज़वात, मिस्कीन का मसाकीन है, सहाबी सहाबा और असहाब, सबब असबाब, करीब गुरबा, इस तरह से यहाँ पर अल्फाज दिए गए। तो बच्चों, हमने पढ़े गए सबक का 80 मार्क्स के पेपर के तनाजुर में जायज़ा लिया कि किस किस्म के सवालात यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने यहाँ पर तीनों सरगर्मियाँ देखी। अब सबक ख़त्म होने के बाद मशक़ी सरगर्मियाँ भी वहाँ पर दी गई हैं। इन मशक़ी सरगर्मियों को भी आप दीक्षा ऐप, ये जो दीक्षा ऐप का यहाँ पर आइकन आ रहा है, इस पर जाकर आप लोग मज़ीद मालूमात मशक़ों को भी हल कीजिए और अपने असातिज़ा की मदद से उसका अपने जवाबात का मुआज़ना कीजिए, जवाबात को दर्ज कीजिए। आप किताब में आप लोग जब देखें मशक़ों में वहाँ पर आपको एक QR कोड नज़र आ रहा है, उसकी मदद से आप दीक्षा ऐप पर विज़िट कर सकते हैं स्कैन करने के बाद। और बच्चों, एक यहाँ वेबसाइट भी दी गई है, रेख्ता.com। इस वेबसाइट पर भी आप लोगों को बहुत सारे अशार, किताबी मुफीद मालूमात मिल सकती है, इसीलिए यहाँ पर आपको दिया गया। और इजाफ़ी मालूमात में ग़ज़वा तबूक की मालूमात भी पीले रंग से दी गई है, तो इसको भी आप देखिए और मुतालिया कीजिए। अब हम लोग इंशाअल्लाह अगले वीडियो में एक नए सबक के साथ हमारी मुलाकात होगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक चीज़ आप लोगों को और बतानी थी। ये जो खाके आपको नज़र आ रहे हैं, इन खाकों को आपको पेन से ही बनाना है, क्योंकि इब्तदाई जमातों में 8वीं तक अब तो आप लोग पेंसिल का भी इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन ज़बानदानी के जो हमारे चारों पर्चे हैं, उसमें आप लोगों को ये इस तरह के जो खाके हैं, मारूज़ी खाके, ये पेन से ही बनाइए। और कोरोना की इस वबा में अपना मुकम्मल ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, समाजी दूरी बनाए रखिए और बार बार साबुन से अपने हाथ धोइए। और हाँ, इल्म की तफसील बेहतरीन अमल है, इसलिए आप लोग अपने जो साथी तलबा हैं उन तक भी इस मालूमात को पहुंचाने की कोशिश करें और दिए गए होमवर्क को वक्त पर मुकम्मल कीजिए और अपने असातिज़ा से अपने जवाबात का मुआज़ना